عید الفطر میں نماز کے تعلق سے ہم نے بہت زیادہ مطلب کوآپریٹ کیا ہے، اور جو جس طرح کی باتیں حکومت نے کہی ہے ہم نے نہ صرف مانا ہے بلکہ منوایا بھی ہے، اور نہ صرف عمل کیا ہے، عمل کروایا بھی ہے، اور بہت کچھ کیا ہے۔ ہم خود جو ہے بہت تعاون اپنا پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں دوسری چیزوں پر، دوسرے کاموں پر، دوسرے دھندوں پر، تو ہم کو لگتا ہے کہ جہاں اگر بھیڑ بھاڑ ہی خطرہ ہے تو پھر وہ بھیڑ بھاڑ کیوں کر خطرہ نہیں ہے، اور پھر وہ بھیڑ بھاڑ تو گھنٹوں کی ہے، اور ہمارے پاس میں نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونے کا جو قصہ ہے وہ بمشکل آدھا گھنٹہ ہے یا 15 منٹ ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے شرائط اور آپ کے جو ضوابط ہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ عبادت کے ادا کرنے کے سلسلے میں بھی جو شرائط اور ضوابط ہیں ہم اس کو فالو کریں گے۔ جہاں ہمارے پاس مسجد میں اگر 500 مصلیان کی گنجائش ہے وہاں ہم 100-150 پر اتفاق کر پائیں گے۔ اب وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس بھیڑ کو کس طرح سے کنٹرول کر سکیں گے۔ نمبر 4 یہ کہ چونکہ اس وقت عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ، اور اب بقرعید بھی آ رہی ہے، عید الاضحیٰ، اس موقع پر بھی ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں عید الفطر کی طرح ہم اپنی عیدگاہوں میں نمازیں ادا کر دینے سے کہیں چوک نہ جائیں پھر، اس لیے کہ ہمارے نزدیک عیدگاہ کا جو تصور ہے وہ تقریباً مسجد ہی کے جیسا ہے، اور وہ عید کے لیے، اور جب عید کے لیے وہاں پر اگر نماز ادا نہ کی جائے تو ظاہر ہے کہ ہم کو اتنا ہی درد ہونا چاہیے جتنا کہ کسی مسجد میں کوئی نمازیں ادا نہ کیے جانے پر ہو۔ اس لیے عیدگاہ میں نماز ادا کرنے، بھلے وہ کم ہو تعداد، ڈسٹینس کے ساتھ ہو، کچھ بھی ہو، ہم ہر چیز تسلیم کرنے کو تیار ہیں، لیکن نماز عیدگاہ میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ بہرحال ایک مسجد ہے، اور وہ بھلے سال میں 2 مرتبہ ہی کا کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایک اپنے اندر بہرحال ایک اسلام کا ایک شعار کی حیثیت سے اس کا مقام بنتا ہے۔ اس لیے یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر ہم، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتی ہے تو ہم حکومت کے پاس میں ان سے مطالبہ کریں، ان کو منوانے کی کوشش کریں، اور بہت زیادہ بھی ہم یعنی بالکل معمولی کی طرح نہ بن جائیں کہ جیسا موڑ دے ویسا مڑ جائیں۔ ارے ہمارا اپنا بھی کچھ سوچ ہے، ہماری اپنی بھی کچھ یعنی اپنی کمیونٹی کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ باتوں کو منوانے کا کچھ طریقہ کار ہونا چاہیے ہم کو، اور پھر ہم کم سے کم یہاں جس صوبے میں ہم بیٹھے ہیں وہاں کی حکومت جس طرح کی ہے تو شاید وہ ہو بھی جائے گا اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس کے جو گرد و نواح اور بیک گراؤنڈ میں جس طرح کی چیزیں ہیں، اس لیے اس سے کوئی، تو ہم نے بھی ذرا تھوڑا سا اپنی پوزیشن کو ذرا تھوڑے سے سخت بنانی چاہیے۔ اور ایک عربی کا جو محاورہ ہے کہ خذوہ بالموت حتی یرضی بالحمى، کہ سامنے والے کو اگر موت کی دھمکی دیں گے آپ تو بخار پہ کم سے کم تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو یعنی ہم اپنے مطالبات کا ایک پلندہ اگر رکھیں گے تو بہت ساری چیزوں کے اندر شاید ایسی میری رائے ہے، اور شاید میں نے زیادہ وقت لے لیا تو معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک بات میں مولانا صاحب کی اس بات سے یہ رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جو کنڈیشن ڈالی ہے کہ آن لائن جانوروں کا یہ کریں کر کے، ابھی چھوٹے موٹے کسان یہ وہ جو ہوتے ہیں اور جانور ایسا نہیں ہوتا ہے، ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کوئی بھی جانور اٹھا کے لے کے آتے ہیں، جانور بھی لانے کے لیے مطلب آپ کو پورے بہت ساری اس کے اندر اس کے بھی شرائط پسند آنا چاہیے، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ اب اگر ہم کو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جنرلی جیسا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ محلوں کے اندر جیسے چمپا چوک کے اوپر ہے تو جانور بہت ساری بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے، اگر ہم اس کو ترتیب سے اگر کرتے ہیں، ہم 2-4-6 بڑے گراؤنڈس کی اگر کل ہی سے اگر ہم اعلان کر دیتے ہیں یہ 2-4 بڑے گراؤنڈس کے اوپر جانور رہے گی تو وہ تھوڑا سا اس کے اوپر مطلب کہیں بھیڑ اکٹھا نہیں ہوگی، ہم ڈیزگنیٹڈ ہم یہ کر دیتے ہیں، ہم اس کا ڈسپلن بھی جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو ذمہ داری دے دیتے ہیں، یہ گراؤنڈ کی ذمہ داری آپ کی کہ وہاں پر بھی پورا طریقے سے دیکھیں۔ یہ ہم کو ایک تھوڑا سا اس بارے میں بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر نظر لگائے ہوئے ہیں کہ نہیں اب عید کے اوپر کیسا ہے، میں نے جیسا اوپن نیوز کا ایک اس کے اوپر ویرودھ کیا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے اس کا اپوز کرنا شروع کیے ہے میڈیا کے اوپر، کیوں نہیں منا سکتے ہیں بھائی عید ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ منائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ جو شرطیں آپ جو بول رہے ہیں کہ وہ ہر شرط مطلب پریکٹیکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ جب سرکار یہ نیم بنا رہی تھی تو کسی نے بتانا چاہیے تھا کہ صاحب یہ آن لائن ہے تو جانور نہیں ہو سکتا ہے،
हम मंगाएंगे कुछ और आएगा कुछ, तो शरीफ की कॉमेडी वाला जी ऑनलाइन बकरा जी। होने वाली दुल्हनों को तो नहीं पसंद किया जा सकता हमने। और आप लोगों की कुछ इसमें एक चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट जो नॉर्म्स या जो भी उसके मतलब उसके तरीके वदा कर रही है, बता रही है, तो ऐसा ना हो कि हम जो आप शिरकत फरमाएंगे वहाँ पर हमारे डिवीजन कमिश्नर वगैरह के साथ में जो मीटिंग होगी, तो वो हमको कन्विंसिंग के लिए उसको बुलाएं कि भाई ये कंडीशंस है, इसके ऊपर तुम अपने माशरे को, अपने समाज को कन्विंस करो। अगर ये बात होगी तो अपनी ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग की जो मतलब इसकी हिफाजियत ज़्यादा नहीं महसूस होती। इससे पहले जैसे हुआ तो वे मशवरे तो अब होते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि उनके पास में खुद एक लाइन ऑफ एक्शन, एक गाइडलाइंस मौजूद है। वो ये कहते हैं कि तुम इस गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके पास पहले से फार्मूले वगैरह सब तैयार हों और हम सिर्फ उनके पास जाकर चीज़ें मतलब कन्विंस होने के लिए जा रहे हैं, ऐसा हो, ऐसा तो नहीं है। अभी जैसा ने बताया है कि मतलब ये हमको तय करना है कि ये ईद हम कैसे मनाएं। ये हम हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस, आप लोगों को बुलाने का मकसद यही है कि ईद अब कैसी मनाई जाए, ये होम डिपार्टमेंट नहीं तय करेगा, ये हमारे कुछ शराइत है उसके हिसाब से ही मतलब ईद मनाई वहाँ पर जाए। जो वज़ीर अक़लियती उमूर है, हाँ, उन्होंने जो चीज़ें वहाँ तय की और जो उनका इज़हार ख्याल है हमारे नवाब मलिक साहब को उनका, तो वो चीज़ें तो ऐसा बता रही कि उन्होंने ये जो मौक़िफ़ हम अभी मौलाना ने जो पेश किया वो उसकी वहाँ मुखालिफत कर चुके हैं कैबिनेट में। और उद्धव ठाकरे साहब ने जो बयान दिया है वो बयान एकदम ऐसा लग रहा है कि वो फाइनल किस्म की चीज़ें हैं जो कि यानी सर्कुलर की रोशनी, DR की रोशनी में निकाली जा चुकी है, ऐसी पोजीशन सही है। तो मतलब ये है कि भाई अगर ये चीज़ें हम डिविजनल कमिश्नर साहब ये जो भी है, ये असल में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, अगर ये डिसीजन मेकिंग है तो हम इनके पास जाकर बात रख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक मेमोरेंडम ऐसा तैयार करके हम वज़ीर दाखिला को भेजें और उनको बताएं कि ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें इस अंदाज से होनी चाहिए जो मौलाना ने आपके सामने आपके सामने पेश किया, और माशाल्लाह आप उसको पेश करेंगे तो उन पर असर पड़ेगा। हाँ, लेकिन देखिए मतलब अब देखा जाए तो अब एक 10 दिन बचे हुए, गवर्नमेंट ने अपना एक मौक़िफ़ क्लियर कर दिया है कि हमने ये गाइडलाइंस बनाए हैं। जिस वक्त की गाइडलाइंस निकल रही थी, जिस वक्त CM साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर मुस्लिम MLAs भी मौजूद थे, उन लोगों ने ये तरीके से साफ बता देना चाहिए था कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप ऑनलाइन, आप सिंबॉलिक क्या बताना चाह रहे हैं, जैसा ये बताया है कि आपने चुप चुप का एक लेके आके है तो ज़िबा कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब एक बेवकूफ़ी का वो आया है। हमारा ये है कि हम लोगों ने औरंगाबाद के हद तक हमने ये तय किए हैं और ये वैसा ही होना है। ये एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि उन्हें हमको समझाएंगे। हमको जब समझने का था अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझे थे। हमने रमज़ान ईद के टाइम के ऊपर अपने अपने घरों के अंदर नमाज़ें पढ़े हैं, हमने पूरे रमज़ान में है तो तरावी का एहतमाम नहीं किया, हर चीज़ मतलब ये उस वक्त का माहौल अलग था, आज का माहौल अलग है। अब हम लोगों ने क्या करना चाहिए ये आप बिल्कुल अपने उसमें से निकाल दीजिएगा कि हमको वो मनाएंगे। और अब हम भाई जो हमारे शरायत आपने अपने कंडीशंस रखे हैं, लेकिन आपने ये कंसिडर ही नहीं किया है कि जानवर ऑनलाइन है तो हम मंगा ही नहीं सकते, जानवर ऑनलाइन आ ही नहीं सकता। इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए डिपार्टमेंट जी कि भाई आपका ये जो गाइडलाइन है आपकी ये खिलाफ हकीकत है, इसकी ये कोई ग्राउंड लेवल पर ये चल ही नहीं सकता। ये तो कोई एक तरह से ऐसा आपने गाइडलाइन दी है कि जिसके जरिए हम कुछ भी नहीं बना सकते। सही है, अमलन मुमकिन है, मुमकिन नहीं है। तो ठीक है, एक ये पॉइंट हम उसको माशाल्लाह आपको रख देंगे वहाँ पर। बहुत अच्छी बात। देखिए आने वाले जो त्यौहार है जिसके अंदर मुसलमानों की ईद है, हमारे हिंदू भाइयों का गणपति का एक बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है, और ऐसे सूरत में हम देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने से जितने भी फेस्टिवल्स आए थे, जितने भी त्यौहार आए थे, उसमें तमाम मज़हब के, तमाम धर्म समाज के लोगों ने पूरी तरह से सरकार का, प्रशासन का सहयोग दिया और बहुत अच्छे तरीके से अपने फेस्टिवल्स को
पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जो प्रशासन के आदेश आते थे उसके हिसाब से सभी ने ताउन करके उसके जिम्मेदारी समझते हुए सभी ने कोऑपरेट किया है। लेकिन अब चूंकि हालात बदल गए हैं, अब तमाम लोगों को कोरोना वायरस क्या है, उसके ख़तरे क्या क्या हो सकते हैं, ये समझ में आ गया है। सोशल डिस्टेंसिंग लोग खुद कर रहे हैं, मास्क खुद अपने तौर के ऊपर वो लगा रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर अब ये जो ईद आई है, ईद उल अज़हा, उसको देखते हुए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दी है। वो गाइडलाइंस को अगर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जो दीनी एतबार से जो शरायत होते हैं उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है। जैसा उसके अंदर ये बताया गया है कि आप ऑनलाइन जानवर ख़रीद सकते हैं। अब ऑनलाइन कौन सा छोटा सा शेतकरी है, किसान आदमी है जिसके पास 2 जानवर है, वो 2 जानवर मार्केट के अंदर लेके आता है, लोग उसे ख़रीद कर लेके जाते हैं। वो कहाँ इतना टेक्नोलॉजी एडवांस है कि वो ऑनलाइन डालेगा, और ऑनलाइन लोग कहाँ इतने होशियार है कि वो ऑनलाइन जानवरों को ख़रीद सकते हैं। तो हमने ये एक तजवीज़ रखी है कि आज जितने भी औरंगाबाद शहर के जितने भी उलमाए कराम हैं, ये सभी उलमाए कराम आए हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है, और उस राय के अंदर ये बात सामने आती है कि जानवरों का जो है औरंगाबाद ज़िले के अंदर हम लोग छोटे छोटे बाज़ार अलग अलग जगह के ऊपर लगाए ताकि भीड़ ना हो। और ये क़ानून के तहत नहीं, ये हम खुद जानते हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि भीड़ ना हो, इसका ख्याल हम खुद रखेंगे। दूसरा ये है कि रमज़ान की ईद जब आई तो ये कहा गया कि आप नमाज अपने घर में अदा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ने इतनी बड़ी जो रमज़ान की ईद आती है उसके अंदर सभी लोगों ने उसका पालन करते हुए अपने अपने घरों में नमाज़ें पढ़ी है करके। लेकिन ये कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो आपने सारी चीज़ें खोल दिए हैं, आपने बाज़ार खोल दिए हैं, सारे दुकान कारोबार सब शुरू हो गए हैं। तो हमारी ये एक मांग है कि अब धार्मिक स्थल जो है, चाहे वो मस्जिदें हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, इसे भी खोल दिया जाए। आप कंडीशंस रख दीजिएगा, आप कंडीशंस बता दीजिएगा कि मस्जिद के अंदर इतने ही लोग नमाज के लिए जा सकते हैं, मंदिरों में इतने ही लोग जा सकते हैं। वो कंडीशंस को हर कोई फॉलो करेगा। और ये वायरस कब जाने वाला है किसी कोई बता नहीं सकता है। तो अब ये सबकी जिम्मेदारी है कि अब इस वायरस के साथ अपने एहतियात क्या क्या बरतते हुए हमको इसके साथ आगे बढ़ने का है। इस ताल्लुक़ से सभी उलमाए कराम ने अपने अपने राय मशवरे रखे हैं। सभी का ये कहना है कि ईद की नमाज जो है वो ईदगाह के अंदर अदा की जाए। अब ये एक प्रस्ताव आया है सोशल डिस्टेंसिंग पूरे कंडीशंस के साथ, जो गवर्नमेंट करेगी हम पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बात कह दी है जो दीनी एतबार से वो फिट नहीं होती है। तो वो सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए अब ये तय हुआ है कि तमाम उलमाए कराम जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ, चाहे वो पुलिस कमिश्नर साहब हो, डिविजनल कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, म्यूनसिपल कमिश्नर हो, इनके साथ बैठ के अब ये त्योहारों का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। हर मज़हब के त्यौहार आने वाले हैं, उसके लिए कौन सी इत्तेफाक राय से जो अच्छा कुछ फ़ैसला हो सकता है उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। कल कुछ ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करेंगे और उनको बताएंगे कि मतलब आपके कंडीशंस ये है लेकिन दीनी एतबार से ये फिट नहीं होते हैं, तो उसके अंदर क्या रास्ता निकल सकता है, इंशाल्लाह निकालेंगे।